everyone, welcome in our YouTube channel in Srimati R.S. Kalaria Primary School English Medium. Students, today we will do Unit 10, Chapter 20, The Ship of the Desert. Students, today, first of all, we will start from, new words. Okay? First one is hump. H-U-M-P. Hump. Second, proudly. P-R-O-U-D-L-Y. Proudly. Third one, blinking. B-L-I-N-K-I-N-G. Blinking. Next, fourth one, burning. B-U-R-N-I-N-G. Burning. Fifth one, thorns. T-H-O-R-N-S. Thorns. Sixth one, interrupting. I-N-T-E-R-R-U-P-T-I-N-G. Interrupting. Next one, prick. P-R-I-C-K. Prick. Eighth one, disdain. D-I-S-D-A-I-N. Disdain. Last one, wonderingly. W-O-N-D-E-R-I-N-G-L-Y. Wonderingly. Now students, our next question is meanings, right? First one is disdain. Disdain means the feeling of not liking someone. Means कि किसी के लिए भी feelings नहीं आती है. Okay? उसको बोलते हैं disdain. The feeling of not liking someone. Right? Okay, next one. Hump. A large round raised part. Camel को hump होता है ऊपर के साइड राउंड शेप का. Right? उसको बोलते हैं hump. A large round raised part. Right? Next meaning is prick. Prick means to make a small hole in something. जब लायन चलता है तब उसको कांटे चिपते नहीं है. Right? लेकिन उसके पंजे के होल्स होते हैं. Okay? Understood? Prick means to make a small hole in something. Right? Next meaning is thorn. Thorn means a small, large, pointed growth on the stem of a plant. Small means छोटे, large pointed. Yes, pointed होते हैं. Yes. Growth on the stem of a plant means कि plant में छोटे छोटे जो stem होते हैं उसमें pointed वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं thorn. Right? Next is frowning. Means expression of disagreement or anger. Means yes, expressions जो हमारे होते हैं, जो कोई भी चीज़ हमको पसंद नहीं होती है तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा होता है? डिसएग्रीमेंट. हमको पसंद नहीं होता है इसलिए, अच्छा नहीं लगता है इसलिए. राइट? एंगर, गुस्से में होना. वंस अगेन, फ्रॉनिंग, एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट और एंगर. ओके? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू अ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओके? The ship of the desert. Ship of the desert. Desert में कौन रहता है? Yes, camel and lions की story है. Right? Let's start. Lion roaring. Who are you? Lion चिल्ला रहा है और पूछ रहा है तू कौन है? Camel looking down at the lion. I am the ship of the desert. Who are you? Lion कह रहा है नीचे देखकर कि मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ. डेजर्ट में रहने वाला एनिमल हूँ. तू कौन है? लायन को पूछ रहा है. Lion is telling,
डोंट यू नो मी? लायन कह रहा है तू मुझे नहीं जानता है? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट का किंग हूं। कौन कहता है? लायन। यस, कैमल इज टेलिंग आर यू? ओ आई सी। कैमल कहता है कि तू है किंग ऑफ द फॉरेस्ट? अच्छा। लायन, you call yourself the ship of the desert? How can you be a ship? You are an animal. Lion कहता है you call yourself, तू खुद को ही ship of the desert कहता है, तू तो एक animal है। फिर camel is telling, हंस रहा है, smiling, so I am, मैं तो हूँ ship of the desert, but people call me the ship of the desert. I can walk across the desert even on a hot afternoon. मुझे लोग कहते हैं, people कहते हैं मुझे ship of the desert। क्यों? क्योंकि मैं sand, वो बहुत ही गर्म होती है, और in the afternoon में वो hot sand में चलता हूँ। The sand burns but it doesn't bother me. वो बहुत ही गर्म होती है, हॉट होती है, उसमें मैं चलता हूँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? कैमल कहता है। नाउ लायन इज टेलिंग आई कांट बिलीव इट। लायन कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं बिलीव नहीं करता हूँ। कैमल इज टेलिंग कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट? कैमल कहता है चल तू मेरे साथ और तू भी मेरे साथ। ये सैंड के ऊपर डेजर्ट में चल। लायन ब्लिंकिंग, ऐसे ब्लिंक करता है। नो आई कांट। लायन कहता है नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। लायन कहता है मैं दौड़ सकता हूँ फॉरेस्ट में। ओके? कैमल विथ डिस्डेन, एवरी एनिमल कैन डू दैट। कैमल कहता है, क्या कहता है कि सब एनिमल्स चल सकते हैं फॉरेस्ट में। राइट? आई अलोन कैन रन ऑन सैंड। कैमल तो बोलता है कि मैं अकेला एनिमल हूं जो सैंड के ऊपर चलता हूं। राइट? दौड़ सकता हूं। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। कैमल कहता है मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ सैंड में, डेजर्ट में। राइट? अब लायन क्या कहता है देखते हैं। लायन वंडरिंगली, सोचने लगा, हाउ कैन यू डू दैट? लायन कहता है कि तू ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे दौड़ सकता है, क्योंकि सैंड तो बहुत ही गर्म होती है, हॉट होती है, तो हम भी नहीं चल सकते, दूसरे कोई भी एनिमल्स नहीं चल सकता है। तो लायन भी सोचने लगा कैसे थोड़ी हो सकता है। राइट? कैमल क्या कहता है? लुक एट माई फीट। कैमल कहता है तू मेरे फीट, मेरे पैर देख। दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। वो बहुत ही थिक है और पैडेड है। राइट? सो द हॉट सन, वो गर्म हॉट डेजर्ट होता है, वो मेरे पैर में कोई भी असर नहीं करता है। लायन कहता है माई फिट आर पैडेड टू। लायन कहता है मेरा फिट भी पैडेड है। थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आई। राइट? एन आवर। सो लायन कहता है कि थॉर्न्स, जो कांटे होते हैं, वो मुझे चुभते नहीं है। जब मैं चलता हूँ तब होल्स होते हैं। राइट? तो मैं भी 80 किलोमीटर्स, 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ। ओके? कैमल कहता है दैट इज ट्रू। कैमल कहता है सच बात है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट। वो क्वेश्चंस पूछ रहा है कैमल लायन को, तो दौड़ सकता है 80 किलोमीटर्स 1 घंटे में, बट यू कैन रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। लेकिन तू, कैमल कहता है तू दौड़ सकता है डेजर्ट एरिया में हॉट सैंड के ऊपर। लायन कहता है मे बी नॉट, बट मैं तो नहीं दौड़ सकता हूँ। लेकिन कैमल कहता है
and you can't live without water for a week, can you? Camel is telling कि तू एक वीक तक पानी के बगैर रह सकता है? Are you? Lion is telling no, I can't. मुझे तो हर रोज पानी चाहिए. I need water every day, but don't tell me you can do without water. लायन कहता है अभी तू ऐसा मत बोलना कि तू एक वीक तक वाटर के बिना रह सकता है. कैमल इज टेलिंग यस आई कैन. मैं एक वीक तक वाटर के बिना रह सकता हूँ. देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट. स्टूडेंट्स, डेजर्ट एरिया में कोई पानी दिखता ही नहीं है, राइट? नहीं रिवर्स होता है, नहीं लेक्स होते हैं. ओके, बट दैट डजंट नॉट बॉदर मी. लेकिन मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है. कैमल कहता है आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ ए वाटर एट ए टाइम. कैमल कहता है कि मैं एक साथ 200 बॉटल्स पानी पी सकता हूँ. ओके? लायन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक. लायन कहता है, क्या कहता है? कि तेरा स्टमक बहुत ही बड़ा है. कैमल इज प्राउड फील करता है. येस, आई हैव अ बिग स्टमक. आई कैन स्टोर फूड फॉर अ वीक. आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन. उसने क्या बोला? कि प्राउड होकर बोला कि आई हैव ए बिग स्टमक. मेरा स्टमक बहुत ही बड़ा है. आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक. मैं एक वीक तक वाटर स्टोर करता हूँ और 2 वीक तक फूड स्टोर करता हूँ. राइट? लायन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. लायन को तो बहुत ही इंटरेस्ट हुआ. वो स्टोरी सुनता है, एकदम इंटरेस्ट से सुनता है. डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? लायन कहता है तो स्टोर भी कर सकता है फूड. कैमल इज टेलिंग नो आई डोंट. आई स्टोर इट इन माई हम्प. लायन ने क्या पूछा था? कि स्टमक में स्टोर करता हूँ. लेकिन कैमल ने कहा नो, स्टमक में नहीं, लेकिन आई स्टोर इट इन माई हम्प. आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम. मैं बहुत सारा खाना एक साथ खा सकता हूँ. देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट. लेकिन हर रोज़ मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है. लायन इज टेलिंग दैट्स इंटरेस्टिंग, बट व्हाट डू यू ईट? लायन कहता है ये तो बहुत इंटरेस्ट की बात है, लेकिन तू खाता क्या है? कैमल इज टेलिंग आई ईट लीव्स. कैमल लीव्स खाता है, बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट. कैमल कहता है लेकिन डेजर्ट में ट्रीज भी नहीं होते हैं. लायन इज टेलिंग व्हाट डू यू ईट देयर? तो तू वहाँ पे क्या खाता है? कैमल इज टेलिंग देयर आर थॉर्नी bushes in the desert. What I told you? Thorn, a small large pointed growth on the stem of a plant. Thorn means yes, तो वो कांटे वाला stem of the plant वो खाता है. Right? There are thorny bushes in the desert. I eat the thorns. The thorns don't prick my thick tongue. लेकिन वो जो कांटे वाला जो मैं खाता हूँ वो मेरे टंग में चुभता नहीं है. होल्स, यस, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं. राइट? नेक्स्ट इज लायन इज टेलिंग हाउ फनी. ये कैसे हो सकता है? कैमल इज टेलिंग मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट. अभी कैमल बहुत प्राउड होकर कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट तू चल मेरे साथ डेजर्ट एरिया में. लायन इज टेलिंग नो, आई हैड बेटर नॉट. आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड. मैं तेरे साथ नहीं चल सकता हूँ. बर्निंग सैंड के ऊपर चल नहीं सकता हूँ. आई कांट स्टोर फूड. मैं फूड स्टोर भी नहीं कर सकता हूँ. एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स. मैं तेरे साथ चल नहीं सकता, फूड
स्टोर नहीं कर सकता, वाटर भी स्टोर नहीं कर सकता और थोन्स कांटे वाला भी नहीं खा सकता. गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट. So students, hope you understood. Okay, now we will do exercise from the workbook. Students, we will do exercise from workbook. First question is, why is the camel called the ship of the desert? Camel को ship of the desert क्यों कहा जाता है? Answer is, camel is called the ship of the desert because it can walk on the burning sand. It can live without food and water in the desert for many days. क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो burning sand पर चल सकता है, food and water store कर सकता है for many days, right? Second question, for how many weeks can a camel store food in its hump? Camel कितने weeks तक food store करता है? Answer is, a camel can store food 2 weeks in its hump. 2 week तक वो food store कर सकता है. कहाँ पर? उसके hump में. Third one, what does the camel eat in the desert? Camel क्या खाता है desert में? A camel eats thorny bushes in the desert, right? Next question, why does the hot sun not burn the camel's feet? Camel के feet में ऐसा क्या है कि उसको hot sand असर नहीं करता है, उसको जलता भी नहीं है? Answer is, the hot sun does not burn the camel's feet because they are thick and padded. उसके feet कैसे होते हैं? Thick and padded, right? Why did the lion not want to come with the camel to the desert? Give reason. Lion camel के साथ desert में क्यों नहीं जाना चाहता है? Answer is, the lion did not want to come with the camel to the desert because he can't walk on burning sand. वो burning sand में चल नहीं सकता है. Can't store food and water. वो food और water store नहीं कर सकता है. And can't eat thorns. Right? Now our next question is MCQ. First one, name the ship of the desert. Options are lion, crab, camel, tiger. Yes, ship of the desert हम किसको बोलते हैं? Camel. Next one, name the king of the forest. Options are lion, owl, monkey, crocodile. किसको बोलते हैं हम? Yes, lion. Third one, the feet of the camel are, camel के feet कैसे हैं? Options are thick and padded, long and fat, thick and fat, thin and padded. कैसे होते हैं? Yes, thick and padded. Next one, there are no rivers or lakes in, कहाँ पे नहीं होता है rivers or lakes? Options are plains, mountains, plateaus, desert. कहाँ पे नहीं होता है? Yes, deserts. Next question, at a time a camel can drink on the spot. Camel कितना पानी पी सकता है? Options are 200 bottles of water, 400 bottles of water, 100 bottles of water, 300 bottles of water. कितनी बॉटल वो पी सकता है एक साथ? Yes, 200 bottles of water. Next, a camel store its food in its, कितना स्टोर कर सकता है? कहाँ पे कर सकता है? Options are stomach, hump, legs, lips. Yes, answer is yes, hump. Okay. Next question is filling the blanks. Camel can store water for a blank, for a, yes, week. Blank can walk across the desert even on a hot afternoon.
कौन चल सकता है डेजर्ट एरिया में? आफ्टरनून? यस, कैमल कैन वॉक. थर्ड वन, camel can run on blank at 25 kilometers an hour. कहाँ पे वो? Yes, on sand. Yes. उसके अभी feet कैसे हैं? The feet of camel are blank and blank. Answer is yes, thick and padded. Next one. Blank can run 80 kilometers an hour in the forest. कौन है वो? Yes, lion. Very good. Next question is true or false? First one, the lion is called the sheep of the desert. Sheep of the desert lion को कहते हैं हम. Answer is false. किसको कहते हैं? Yes, camel. Third, next one, the sand burns but it doesn't bother the camel. Answer is true. Third one, the lion can't store food and water and can't eat thorns. Lion store नहीं कर सकता है, food और thorns भी नहीं खा सकता है. Yes, answer is true. Next one, every animal can run in the forest. सब animals forest में दौड़ सकते हैं. Answer is false. Yes. Last one, some animals can run on sand. Answer is yes, true. Students, our next question is make as many words as you can from within the given words. Now, words is given, right? उसमें से हमको 3 words बनाने हैं. First one is roaring. R-O-A-R-I-N-G. Roaring. तो first word क्या बनेगा इसमें से? Yes, I-N. क्या होगा? I-N. Right? Next क्या होगा? R-A-N. Ran. R-A-N. Ran. And next is R-O-A-R. Roar. R-O-A-R. Roar. Understood? Okay. Second, frowning. F-R-O-W-N-I-N-G. So, इसमें से भी हमको 3 words बनाने हैं. First one is I-N. In. Right? Second is yes, F-R-O-G. Frog. F-R-O-G. Frog. Or third one is R-O-W. Row. R-O-W. Right? Third one, blinking. B-L-I-N-K-I-G. Blinking. First one is yes, I-N. In. I-N. In. Next is link. L-I-N-K. L-I-N-K. Link. फिर क्या होगा? Yes, king. K-I-N-G. King. K-I-N-G. King. Our next question is rearrange the letters and find the names. Now इसमें से हमको yes names ढूंढना है. First one is R-Z-A-B-E. तो क्या होगा? Yes, zebra. Z-E-B-R-A.
zebra, right? Okay, second, R-E-E-D. तो क्या होगा? Arrange them. Yes, deer. D-E-E-R. Deer, right? Okay. Now third one, X-F-O. Fox, yes. F-O-X. Fox. Now fourth one, B-R-A-B-I-T. क्या होगा? Yes, rabbit. R-A-B-B-I-T. Rabbit. Fifth one, N-K-D-E-O-Y. Yes, donkey. D-O-N-K-E-Y. Donkey. Right? And last one, L-M-C-E-A. Yes, camel. C-A-M-E-L. Camel. So students, hope you understood full chapter, right? Thank you.